বাঙালি ও কালচারে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আমরা গিগ ওয়ার্কারদের নিয়ে প্রতিবেদন করেছিলাম এবং তাদের যে অসহনীয় অবস্থার কথা আমরা তুলে ধরেছিলাম। বছর শেষে 25 এবং 31শে ডিসেম্বর তারা স্ট্রাইকে গিয়েছিল। তাদের 10 মিনিটে খাবার পৌঁছে দেওয়ার যে ক্যাচলাইন ছিল, আমরা দেখেছি যে সুইগি, জোম্যাটো, ইনস্টামার্ট, জেপ্টো বা বিগ বাস্কেট থেকে শুরু করে কুইক কমার্স, বিভিন্ন যে ফুড ডেলিভারি অ্যাপগুলো রয়েছে, তারা মাত্র 10 মিনিটের মধ্যে খাবার রেস্টুরেন্ট থেকে একদম একদম যিনি অর্ডার করবেন তার বাড়ির দোরগোড়ায় খাবার দিয়ে যাবে। রাস্তায় যানজট থাকতে পারে, রাস্তায় অনেকগুলো সিগন্যাল থাকতে পারে, সেই সিগন্যালগুলো যে সবসময়ের জন্য গ্রিন সিগন্যাল করে দেওয়া হবে খাবার ডেলিভারির জন্য, বিষয়টা তেমনটাও নয়। তাহলে তাদেরকে একদম আর 5জন মানুষ যেভাবে সিগন্যাল মেনটেন করে তারা পথ পরিক্রমা করছেন, তাদেরকেও কিন্তু ঠিক সেইভাবেই করতে হচ্ছে, কিন্তু তারা সেভাবে করতে পারছেন না। রেড সিগন্যাল থাকা সত্ত্বেও তারা এদিক ওদিক দিয়ে যেভাবেই হোক দ্রুত তাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে চাইছেন। এর ফল কি হচ্ছে? এর ফল মারাত্মক হচ্ছে, জীবন চলে যাচ্ছে। একাধিক ডেলিভারি বয়, তাদের অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, দুর্ঘটনা ঘটেছে, তারা হাসপাতালে ভর্তি, অনেকে ফিরে এসেছেন, অনেকে ফিরে আসেননি। তাদের জন্য কিন্তু যারা দুর্ঘটনায় উঠছেন, তাদের জন্য একটি টাকাও এই সংস্থাগুলোর তরফে, ফুড ডেলিভারি যে অর্গানাইজেশনগুলো রয়েছে তাদের তরফে একটা টাকাও দেওয়া হয়নি। এরকম বিভিন্ন রকম দাবি দাবা তাদের রয়েছে। অর্থাৎ এক কথায় তারা ভীষণভাবে অমানবিক নির্যাতনের শিকার এই ফুড ডেলিভারি সংস্থাগুলোর দ্বারা, এবং সেই কারণেই বছর শেষে 25শে ডিসেম্বর এবং 31শে ডিসেম্বর তারা স্ট্রাইক ডেকেছিল এবং আমরা তাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। আমরা প্রতিবেদন তৈরি করেছি একাধিকভাবে, তাদের কথা তুলে ধরেছি, তাদের ইন্টারভিউ আমরা দেখিয়েছি বাঙালি ও কালচারের দর্শকদের। অবশেষে দীর্ঘদিন ধরে যে দরজা চলছে, গতকাল মঙ্গলবার কেন্দ্রের সঙ্গে বৈঠকের পরে অনলাইনে কেনা পণ্য 10 মিনিটে ক্রেতার দরজায় পৌঁছানোর যে পরিষেবা এতদিন বহাল ছিল, সেই পরিষেবা বন্ধ হলো। এবং সেই জায়গা থেকে পরিষ্কারভাবে কেন্দ্রীয় লেবার ইউনিয়ন মিনিস্টার তিনি পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, মনসুখ মান্ডবীয়, তার সঙ্গে বৈঠক হয়েছে এই সংস্থাগুলির, এবং মান্ডবীয় পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন 10 মিনিটস ডেলিভারি সেটা উইথড্র করা হচ্ছে, রিমুভাল করে দেওয়া হচ্ছে। এবং আমরা সেই ছবিটাই আমরা দেখলাম। একাধিক সংস্থা, ফুড ডেলিভারি সংস্থা বা অ্যাগ্রিগেটর, তারা যেভাবে তাদের ক্যাচলাইন তৈরি হয়েছিল যে এতদিন পর্যন্ত আমরা যেখানে দেখতাম 10,000-এর বেশি পণ্য 10 মিনিটে পৌঁছে দেওয়া হয়, এবং সেটা চেঞ্জ হয়ে এই নির্দেশিকার পরে কেন্দ্রের 30,000-এর বেশি পণ্য পান আপনার ঘরের দোরগোড়ায়। এভাবেই কিন্তু সরকারি নির্দেশনামার পরে চেঞ্জ করলো ফুড ডেলিভারি সংস্থাগুলো। আমরা দেখানোর চেষ্টা করছি এই যে সিদ্ধান্ত, সেই সিদ্ধান্তের পরে যারা গিগ ওয়ার্কার বা যারা ডেলিভারি বয় রয়েছেন, ডেলিভারি পার্টনার্স রয়েছেন, তারা কি বলছেন, তাদের কি মত। 10 किलोमीटर के 35 रुपये 40 रुपये ऐसे मतलब देता है। और बहुत सारी प्रॉब्लम है, इंसेंटिव भी बहुत कम दे रहा है, ऑर्डर भी नहीं लगते हैं कि 2-2 घंटे बाद ऑर्डर आते हैं। ये सारी प्रॉब्लम है। कस्टमर जल्दी कॉल नहीं उठाते, कस्टमर सब वही तो ऑर्डर बहुत ज़्यादा कैंसिल भी करते हैं। हमें वेट करना पड़ता है आधा घंटा 1 घंटा तो, और कंपनी हमारा सुनती भी नहीं, पेनल्टी भी लगा देती है। कितने घंटे बाइक चलाते हो, कितना अर्न कर लेते हो? 12 घंटे में कभी कभी 1,000 रुपये, कभी 800 रुपये, कभी 700 रुपये ऐसे बनता है। अगर मांग पूरी नहीं करी तो फिर आगे क्या करेंगे? क्या करेंगे, काम छोड़ देंगे या कल से काम बंद करेंगे। फिर कितने दिन की हड़ताल करेंगे? मैं तो 5 दिन के लिए बंद करूँगा, देखो राइडर बंद करते हैं कि नहीं। 3-4 साल से काम करते हैं, 8-9 घंटे काम कर रहे हैं रोज। और लगभग जैसे ना कंपनी क्या कर रही है कि जैसे किलोमीटर दे रही है, जैसे बोलता है कि 2 किलोमीटर पिकअप दिखाया, और उसके बाद जब पिकअप क्लिक करो मैप पे तो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर हो जाती है। एक तो वो तो एक चोरी हो गई है। दूसरी कि हमें पहले किलोमीटर मिलती थी 12 रुपये किलोमीटर, अब मिल रही है 10 रुपये किलोमीटर। अब मैं 10 रुपये बोल रहा हूँ, अब मिल रही है 7 रुपये किलोमीटर। पहले मिलती थी 12 रुपये किलोमीटर। हमारा पड़ता खाता नहीं है। पेट्रोल वाली गाड़ी है, अब समझो 500 रुपये कमाओ, उसमें से 200 का पेट्रोल चला जाए, 300 रुपये जेब में बच रहे हैं, तो ऐसे में तो काम चलेगा नहीं ना मेरे भाई। पूरे दिन चलाने के बाद कितने पैसे निकल लेगा? पर भाई नाइट में करता हूँ मैं। नाइट में एक तो ऐसी दिक्कत होती है कि रात में आप चला रहे हो गाड़ी, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो एक तो वो इशू है।
प्लस में मैं जब भी काम करता हूँ तो कोशिश करता हूँ 9 घंटे तो काम करूँ ही करूँ। अगर बाई चांस कुछ खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो कंपनी उसका कुछ करती है? बड़े भाई अभी तक तो देखो, एक बार मेरा फ़ोन फूटा था, इन्होंने बोला कि फ़ोन का मतलब डैमेज का 500 रुपये मिलते हैं। मैंने क्लेम मारा, वो फ़ोन का मतलब आज तक मुझे इंश्योरेंस क्लेम मिला ही नहीं। कॉल करते हैं, पूछते हैं, फिर बोलते हैं दोबारा बिल अपलोड करो, फिर अपलोड करते मिलता नहीं है। तो अभी तक तो हमें कोई बेनिफिट इससे मिला नहीं है। अभी जो हड़ताल है उसमें क्या क्या मांगे लेके चल रहे हो आप? बड़े भाई यही करना चाहेंगे हम कि हमारा जो है पे आउट बढ़े, और जो ये चोरी कर रहे हैं कि 2 किलोमीटर दिखा के 4 किलोमीटर पिकअप हो जा रहा है वो कम करे। तो यही है हमारी डिमांड। इंसेंटिव पहले 500 रुपये मिलती थी, अब 250 रुपये मिल रही है। जी सर, हड़ताल करने की सबसे बड़ी रीज़न है कि 2-3 चीज़ पे ध्यान देने वाली बात है। सबसे पहली चीज़ कि कंपनी जो एक तो कहती है कि डिलीवरी फास्ट पहुंचाओ। फास्ट पहुंचाने के चक्कर में हमारे बहुत से राइडर जो है ना वो घायल होते हैं, समझ रहे हैं। दूसरी चीज़ कि एक ऑर्डर पे पैसे कम मिलते हैं। मान लो एक ऑर्डर पे हमें 20 पैसे से 25 रुपये मिले हैं, अब उस ऑर्डर को हम जल्दी छोड़ेंगे तो हम दूसरा ऑर्डर हमको मिलेगा। और कंपनी भी कहती है फास्ट छोड़ो, तो इससे आपकी इंसेंटिव भी बढ़ेगी, आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी, समझ रहे हैं। तो इसलिए हम लोग डिमांड बहुत है। अभी तो ये जो हड़ताल तो बहुत बड़ा हड़ताल होने वाला है, समझिए पूरे हिंदुस्तान में इसका हड़ताल है। हम सब राइडर अब एक हो चुके हैं, समझिए। कंपनी हम लोग से बहुत फ़ायदा उठा चुकी है। इसलिए हमारी कंपनी से मांग है सबसे पहली चीज़ कि हमारी इंसेंटिव बढ़ाए, क्योंकि हमारी जो कमाई है समझिए 12 से 14 घंटा काम करते हैं। 12-14 घंटे में 700 750 हाईएस्ट हो जाता है तो 1000 हो जाता है। अब 12-14 घंटा काम करके एक मजदूर से भी बदतर हम लोग की हाल हो रही है इस काम में। तो इसलिए हमारी कंपनी से मांग है कि हमारी जो इंसेंटिव उसको बढ़ाया जाए, समझिए। और ये जो 10 मिनट का है जो मामला है इसको ख़त्म किया जाए। और हम लोग को जो है ना मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, सारा चीज़ हम लोग का जो वो पैसे कटते हैं क्या बोलते TDS है, हाँ उसको भी हम लोग को जो है ना क्या बोलते हैं, आप ठीक है काटो, TDS काटो, आप उसको हमें जो है ना 3 महीने में रिफंड करो। ये हम लोग की जो है ना सबसे ये सब चीज़ की हमारे हम लोग की मांग है। আমরা দেখানোর চেষ্টা করছি যারা রোদ জল ঝড় বৃষ্টিতে কোনো কিছু পরোয়া না করে তাদের খাবার ডেলিভারি করতে হয় তাদের অবস্থার কথা শুনুন। তাদের মুখ দিয়েই কি বলছেন তারা, কিভাবে তাদের খাবার পৌঁছে দিতে হয় রেস্টুরেন্ট থেকে বাড়ির দোরগোড়ায়, এবং কতটা চাপ সহ্য করতে হয়, মানসিকভাবে তাদের কতটা চাপ নিতে হয়, তাদের মুখেই শুনুন সে কথা। किलोमीटर में पैसे कम मिलते हैं, बाकी पैसे तो टाइम पर कंपनी भेज ही देती है, लेकिन एक ऑर्डर पे 11 रुपये मिलता है। पहले मिलता था 10 रुपये किलोमीटर, अब 11 रुपये मिलता है। तो इसके लिए कंपनी आप लोगों को कोई फैसिलिटी देती है? कोई फैसिलिटी नहीं। इंश्योरेंस में एक्सीडेंट हुआ था, उसमें कोई मतलब एक्सीडेंटल बीमा नहीं मिला था। साथियों आप देख सकते हैं कि ये आज जो हम लोग घर पे बैठकर इस ठंड में घर पर बैठकर ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, और उस ऑनलाइन ऑर्डर के तहत भी टैक्स जाता है, लेकिन सरकार जो है और कंपनी सरकार कोई सहायता नहीं कर रही है गिग वर्कर के लिए। ना ही इनको, अभी हाल फिलहाल में इनका एक्सीडेंट भी हुआ था, कोई इंश्योरेंस नहीं। आप साथियों देख सकते हैं कि इनको कितना मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और वो रेटिंग वाला क्या है, रेटिंग बढ़ता है, उस पर उन लोग का ऑर्डर ज़्यादा मिलते हैं। अरे रेटिंग माफिया, इनमें भी रेटिंग माफिया। अगर आप रेटिंग नहीं दोगे तो इनको ऑर्डर मिलेगा नहीं। तो गिग वर्कर को हर एक मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ना ही इनकी जॉब जो है वो कंटिन्यू रहती है। लेकिन मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि कम से 12 कम घंटे में 700-800 का काम ही हो रहा है। 12 घंटे में आप देख सकते हो कि 12 घंटों में ये 600-700 का काम कर पाते हैं। अपनी दिहाड़ी, इतनी मेहनत के बाद दिहाड़ी, उसमें भी पेट्रोल भी जाता है, अपना पेट्रोल जाता है। तो आप बताइए कितना मुश्किलात का খাবার सामना অর্ডার इनको करना দিচ্ছেন, पड़ता অর্থাৎ है। ক্রেতার কাছে যদি খাবার একটু দেরিতে পৌঁছয় তাহলে তো কোনো ক্ষতি নেই, তিনি তো মারা যাবেন না, তিনি তো অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে না তাকে। কিন্তু এই 10 মিনিটের ডেলিভারি করার যে মানসিক চাপ, সেই চাপ সহ্য না করতে পেরে একের পর এক তরুণ যুবক ছেলেরা মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছে তাদেরকে। আমরা দেখেছি সেই চিত্র। নতুন বছরের শুরুতেই গত সপ্তাহে হায়দ্রাবাদে মাত্র 25 বছরের একজন ডেলিভারি বয় অভিষেক দ্রুতভাবে সে গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে চাইছিল এবং সে বাসের ধাক্কা খায় এবং সেখানে বাসের তলায় চাপা পড়ে তার মৃত্যু ঘটেছে।
এরকম অনেক ঘটনা ঘটেছে সারা দেশ জুড়ে মেট্রো সিটিগুলোতে। আমরা এরকম আচ্ছার ঘটনা, দুর্ঘটনা, সেখানে আহত হচ্ছেন, সেখানে মারা যাচ্ছেন একাধিক গিগ ওয়ার্কার বা ডেলিভারি পার্টনার, সেই সব ছবি কিন্তু আমরা দেখেছি। এতদিন পর্যন্ত এভাবেই চলছিল, ক্যাচলাইন ছিল 10 মিনিটস ডেলিভারি। এবার থেকে তা পরিবর্তন হচ্ছে। আর এই বিষয়ে রাজনৈতিকভাবে অনেকে এগিয়ে এসেছেন। বিশেষত বলতেই হবে আপ সাংসদ রাঘব চাড্ডার কথা, যিনি পার্লামেন্টে প্রতিবাদ করেছেন। শুধু তাই নয়, 25 ডিসেম্বর বা 31শে ডিসেম্বর তারা যখন স্ট্রাইকে গিয়েছিল, সেই সময় তাদের সঙ্গে স্ট্রাইকে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। এমনকি গিগ ওয়ার্কারদের সঙ্গে তিনি নিজে থেকে টহল দিয়েছিলেন। তাদের যে জীবন যন্ত্রণার কথা নিজের চোখে দেখবার জন্য আপের এই সাংসদ রাঘব চাড্ডা তিনি সামিল হয়েছিলেন, এবং এই সিদ্ধান্তের পরে তিনিও স্বাগত জানাচ্ছেন এবং তিনিও বলছেন সত্যমেব জয়তে। आज देश के गिग वर्कर्स के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। उन सब के लिए गुड न्यूज़ है, और गुड न्यूज़ ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हस्तक्षेप के बाद क्विक कॉमर्स कंपनीज जैसे कि ब्लिंकिट एटसेट्रा अब 10 मिनट में डिलीवरी की जो ब्रांडिंग है वो हटाएंगी। जी हाँ, ये आप सबके एफर्ट से और आप सब ने एकजुट होकर जो आवाज़ उठाई उसी से संभव हो पाया। आपकी आवाज़ शायद इन कंपनीज की मैनेजमेंट तक तो नहीं पहुंची या उन्होंने अनसुनी कर दी, लेकिन आपकी आवाज़ केंद्र सरकार ने सुनी और उस पर कार्रवाई भी करी। मैं सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के इस हस्तक्षेप के लिए उन्हें बधाई देता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं, और ये उन्हीं के इंटरवेंशन से संभव हो पाया। 10 मिनट में डिलीवरी का जो जुल्म है ये वास्तव में बहुत रियल है। जब डिलीवरी राइडर की यूनिफॉर्म पर, उसकी टी शर्ट जैकेट पर 10 मिनट की डिलीवरी का प्रॉमिस छपा हो, या उसके बैकपैक पर 10 मिनट में डिलीवरी का वादा लिखा हो, साथ ही साथ कस्टमर के मोबाइल स्क्रीन पर टाइमर चल रहा हो, तो ये 10 मिनट में डिलीवरी का जो प्रॉमिस है ये बहुत रियल, कांस्टेंट और डेंजरस, खतरनाक हो जाता है। और इसके चलते जो डिलीवरी बॉयज हैं, राइडर्स हैं, उन पर जो मेंटल और फिजिकल टोल पड़ता है वो तो अलग, लेकिन इसके साथ साथ वे खतरनाक ड्राइविंग भी करते हैं, अपनी जान को भी जोखिम में डालते हैं, और अन्य लोग जो उनके साथ सड़क पर चल रहे हैं, अपनी गाड़ियों में, स्कूटर्स पर या पैदल चल रहे हैं, उनकी जान को भी जोखिम में डाला जाता है। मैं पिछले कुछ महीनों में कई डिलीवरी बॉयज से मिला, उनसे बात करी। उनमें से अधिकतर लोग अंडरपेड हैं, ओवरवर्क्ड हैं, और एक अनरियलिस्टिक प्रॉमिस, ये 10 मिनट में डिलीवरी के इस अनरियलिस्टिक प्रॉमिस के प्रेशर को बहुत मुश्किलों से झेल रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हो या हम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो, हम सब लोग प्रो इंडस्ट्री हैं, प्रो बिजनेस हैं, प्रो स्टार्टअप हैं, प्रो इनोवेशन हैं, लेकिन हम लोग एक्सप्लॉयटेशन का कभी समर्थन नहीं कर सकते। इसीलिए इस पूरी मुहिम का मकसद किसी कंपनी को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि इन गिग वर्कर्स और इन डिलीवरी बॉयज की जिंदगी को बेहतर करना है। और आज जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फैसला लिया है, ये केवल उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी ही को ही सुनिश्चित नहीं करेगा, बल्कि उनकी डिग्निटी और उनकी वर्किंग कंडीशंस को भी बेहतर करने में मील का पत्थर साबित होगा। मैं तमाम गिग वर्कर्स को कहना चाहता हूं कि इस मुहिम में, इस लड़ाई में आप सब अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत। काफ़ी भीड़ होती है। जैसे हम ऑर्डर लेके निकले, जाम मिल गया, जाम में 10 से 15 मिनट तो जाम में रेड बत्ती हो जाती है। 120 ये प्लस 1 मिनट 30 सेकंड की तो रेड बत्ती होती है। उसके बाद में हमें जब ये हो गया हमारा, उसके बाद फिर बाद में जाम मिल गया, 10 मिनट उसमें लग गई। कस्टमर के पास गए, कस्टमर ने 10-15 मिनट तो कस्टमर ही ले जाते हैं हमारी। 10 मिनट वाला टाइम खत्म कर दिया तो कितना सेफ मानते हैं इसको आप? काफ़ी सेफ है हम इसमें। ड्राइविंग की बात रही है कि जैसे टाइम लग जाता जाने में, जाम मिलता था, भीड़ भाड़ होती थी। ड्राइविंग का तो ये है, हम ड्राइविंग करते थे, कहीं एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो उसका कोई क्लेम वगैरह कुछ नहीं था ना। अब हम आराम से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना ही टाइम लग जाए कोई परेशानी नहीं है, इसलिए बाइक आराम से चलाएं। सभी राइडर चलाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी इससे। আমাদের প্রশ্ন জাগে, একটু সহানুভূতি কি মানুষ পেতে পারে না? এই যে একের পর এক প্রাণ চলে গেল, যারা ব্যবসা করছেন, কোটি কোটি টাকার ব্যবসা করছেন, তারা কি একটু সহানুভূতিশীল, একটু মানবিক হতে পারেন না? যদি তারা সেটা হতেন, তাহলে নিশ্চয়ই অন্ততপক্ষে সরকারি নির্দেশনামার জন্য অপেক্ষা করতে হতো না,
যে 10 মিনিটস ডেলিভারি, এই যে শব্দ বন্ধ, তার রিমুভাল করতে হবে। এটা কোন ধরনের ব্যবসা, কোন ধরনের মুনাফা লোভী এক ধরনের স্বার্থান্বেষী মালিক পক্ষের সুবিধাবাদী রাস্তা তৈরি করা। এই রাস্তা কোনো সাধারণ মানুষ, শিক্ষিত, ভদ্র, রুচিশীল, মানবিকতা যার রয়েছে, সহানুভূতি যার রয়েছে, কোনো মানুষই সেটা মানতে পারবেন না। যাই হোক, তাদের এখনো অনেক রকমের দাবি দেওয়া রয়েছে। একটি দাবি হয়তো মিটেছে, আগামী সময় এই গিগ ওয়ার্কারদের ভবিষ্যৎ কোন পথে চলে, নজর থাকবে আমাদের সেদিকেও। বাঙালি ও কালচার তাদের পাশে, মানুষের পাশে সব সময়ের জন্য। যদি আপনি এখনো পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন কন্টেন্ট বেসড এই চ্যানেল বাঙালি ও কালচার, তাহলে এখনই আসুন আমাদের পরিবারে, সামিল হন। আপনার মূল্যবান মতামত, পরামর্শ নিয়ে আমরা একটু একটু করে চলতে চলতে পৌঁছে যাব আমাদের লক্ষ্যের দিকে। ভালো থাকুন সকলে।